If you are stuck in a wrong banking career, that in a hectic private sector bank work culture, or your boss is not aligned with you, you have a toxic work environment, then time is to switch the job. Public sector banks offers immense opportunities for bankers working in private sectors. Every year, thousands of vacancies come in State Bank of India, CBO, Scale 2, Scale 3, RRB, Bank of Maharashtra, Bank of Baroda, so many other banks coming up with so many vacancies. So stay ready, stay ahead in the race. We are India's only dedicated professional banking platform who set the trend in the year 2020. Since then, there are thousands who switched from private sector banks to public sector banks. So time is to prepare for these exams. So see you inside. The courses and everything is available in the description. You can also reach out us for more career counseling, and for more, visit our website, ping us in our WhatsApp number given on the screen, and start preparing diligently. Thank you. Hi guys, this is Preet and this is the second class of input output devices. We are going to start this class in just a few seconds. Okay guys, so let's start this class. So in the previous class we talked about many input devices and today we are continuing it, and here are some more input devices guys. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्कैनर्स. आज हम स्कैनर से शुरुआत कर रहे हैं. पिछले जो हमारा सेशन रहा था उसके अंदर हमने काफी सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर ली थी. वी टॉक्ड अबाउट लाइक कीबोर्ड, माउस, पॉइंटिंग डिवाइस, टच पैड, जॉयस्टिक, टच स्टिक, देन our let's say touch input devices and many others, MICR and so on, right? And today we are going to talk about scanners. Okay, so scanner works more like a photocopy machine. It is used when some information is available on paper and it is to be transferred to the hard disk of the computer for further manipulation. So what we are trying to say, scanner works similarly as a photocopy machine guys. And basically, we use a scanner when we need to transfer our written information or a pictorial information into a computer, right? So basically a hard copy into digital copy, right? So when we try to change a hard copy into digital form, a scanner captures image from a source which are then converted into a digital form that can be stored on a disk. These images can be edited before they are printed. So what we are trying to say, basically a scanner captures multiple images of that particular hard copy, right? And then convert it into a single digital form. Okay, तो होता क्या है, basically when we have a hard copy, a scanner head basically with multiple cameras, a scanner head with multiple cameras takes many pictures of that hard copy and combine them together to create a digital copy. Okay guys, then we can manipulate that image afterwards. So the first scanner were invented in 1860s. However, at the National Bureau of Standards in United States, a guy named Russell Kirchen developed a scanner that is still in use today. For the first time, the gadget scanned a photocopy of Kirchen's sun. The black and white graphic had a resolution of 176 pixels on each side and sized only 5 by 5 centimeter. So, the first scanner was invented in 1960s by Rochelle Kirchen. Okay, remember this? And first time he scanned a photocopy of his son's photo, right? So it was approx 176 pixels and size about 5 by 5 centimeter, guys. Okay, remember this? This can be important, guys. Okay. Okay, let's move ahead. Let's talk about types of scanners. कितने टाइप के स्कैनर्स होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फ्लैट बेड स्कैनर्स. बेसिकली इट कैन स्कैन वन शीट एट अ टाइम and it is a scans bound documents. So you can put only one sheet in this type of scanner and then
after scanning, you can like change that sheet again and again, right? For scanning multiple sheets. Okay. So this is the normal scanner which we all normally use. But there is a sheet feed scanner. What is sheet feed scanner, guys? Let's talk about that. Okay, there is a question, scanner input and output दोनों होगा? No, scanner is a input device, guys. Basically scanner input device है आपके physical data को डिजिटल फॉर्म में बदलता है, राइट? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, राइट? Remember this. Then we have sheet feed scanner. Basically, okay, it has a motorized roller basically over here, and it in this sheet moves across scanning head. So there is a scanning head fixed in this. A scanning head is fixed in this. In flatbed scanner, our scanning head basically moves, but in sheet feed scanner, our scanning head is fixed in one place and sheet moves. Okay, so remember this. In the flatbed scanner, our scanning head moves, but in the sheet feed scanner, our scanner head is fixed and sheet moves. Okay, guys. As I told you earlier, Aman, scanner is the input device only. How it can be an output device? Come on, guys. Multiple guys are asking that it is input output both. How? What is it giving as output? Tell me what a scanner is giving you as output. Come on, tell me. Okay, let's move ahead. So these sheet feed scanners are generally small and in convenient size, less versatile than flatbed, and it can scan multiple documents at the same time. So we can insert multiple sheets at once, and it takes one sheet at a time, scans that, then again one new sheet scans that, and again one sheet scans that. Okay, so it can take one by one multiple sheets and scan all of those sheets. Okay, guys, so remember this. Okay, let's move ahead. Then we have handheld scanner. Okay, so we can see these in multiple places. Basically, when we try to shop on a large shop or basically somewhere in mall or something like that. So we see handheld scanners. Basically, these scanners can be used to scan barcodes. Okay, these scanners can be used to scan barcodes, guys. आपने इस तरीके के barcodes देखे होंगे. These kind of barcodes can be scanned with the help of handheld scanners. Okay, QR कोड की बात नहीं हो रही है, barcodes की बात हो रही है. These are least expensive and least accurate also. Okay, these are portable, basically handheld, so we can like carry it around, joint it in a computer, then use it, right? So user must move the scanner in a straight line at a fixed rate. So if you want to scan something, basically you have to uh, uh, like let's say trigger it and then move it closer to the object. It will scan that barcode easily. Okay, then wide document causes problem. If we have a wide document, it cannot scan that easily.
Okay, let me tell you one more thing. Normally we use बार कोड्स. हम सभी ने ये बार कोड्स कभी ना कभी देखे होंगे. आई एम श्योर आप लोगों ने ये बार कोड, हर प्रोडक्ट के पीछे इस टाइप के आपको बार कोड देखने को मिल जाते हैं, राइट? समथिंग लाइक दिस हमें बार कोड के रूप में देखने को मिलता है. ओके, सो व्हेन वी ट्राई टू स्कैन दिस बार कोड, दिस स्कैनर is scanning the white lines in between those black lines. Okay, तो जब हम इस स्कैनर से स्कैन करते हैं तो ये स्कैनर ये व्हाइट लाइनों को कैप्चर करने की कोशिश करता है इंस्टेड ऑफ दोज ब्लैक लाइंस गाइस. तो यहाँ पे वो जो हमें ब्लैक लाइंस दिखाई जाती हैं वो इन व्हाइट लाइंस को अलग अलग करने के लिए होती हैं, राइट? इन व्हाइट लाइंस को अलग अलग करने के लिए वो ब्लैक लाइंस को बनाई जाती हैं. बेसिकली इंफॉर्मेशन व्हाइट लाइंस के अंदर स्टोर्ड है. ओके, सो व्हाइट लाइंस पे एक रेड कलर की लाइट हमारी जब पड़ती है तो हम उसे स्कैन कर लेते हैं. बेसिकली एक रेड कलर की इस पे लाइट डाली जाएगी, उसे कैप्चर कर लिया जाएगा और जहां जहां वो रेड कलर चमक रहा होगा उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन बना दी जाएगी. ब्लैक पे वो रेड कलर चमकेगा नहीं तो वो चीज मिस आउट हो जाएगी. तो एक डैश एंड डॉट की पूरी पट्टी हमें नजर आएगी जब स्कैन करेंगे तो, राइट? विद दिस डैश एंड डॉट it can convert these pattern into data. Okay, so handheld scanners, basically these are called barcode readers. They are very least expensive but also least accurate. They are portable and user must move the scanner in a straight line at a fixed rate, and it causes problem when we try to scan white documents. Okay guys, so remember all of this. Let's move ahead. Now let's talk about optical recognition. Okay, in this we have two things. First, OMR, optical mark recognition. Basically it is mark sensing. We use it in exams, OMR sheets, right? It recognizes the location of the mark. Basically how it recognizes the let's say location of a particular mark when you try to answer A, B, C, D, how it recognizes that. Okay, let's see. Let's say this is your OMR sheet. You will see on the both sides there are some dash and dots created. Okay, so there are these kind of dash and dots on both sides of a sheet. Okay, for example, I think this is good. Okay, now there are 4 options available. Similarly, on the bottom and the top, you will also see these kind of patterns. Okay, with the help of these kind of patterns, it recognizes where is our mark placed. Let's say I circle this C option, right? Okay, so with the help of these marks, it will recognize that this is question number 1 or question number 2 or question number 3, guys. Okay, so with the help of these marks, basically optical mark reader judges which question it is. Okay, so that's how optical mark reader works or OMR sheet works. Okay, now let's move ahead. Let's talk about OCR, optical character recognition. In this we are recognizing characters. So basically a light source reads special characters. So there is a light source, basically it captures its photo
and try to scan that with multiple different fonts and multiple different alphabets. So with whichever it basically matches, it basically recognize it as a character. So OCR के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा पेपर पे हमने जो भी डाला है उसको स्कैन किया जाता है एक लाइट सोर्स के द्वारा, उसकी कैप्चर करी जाती है इमेज, उसमें से हर करेक्टर को अलग किया जाता है और हर करेक्टर को बेसिकली एक डिफाइंड शीट में बेसिकली डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल फॉन्ट्स होते हैं, उसके हर करेक्टर से मैच करके देखा जाता है, जिससे भी मैच हो जाता है उसे बेसिकली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, राइट। There is a standard typeface or font for optical characters. Basically, OCRA. OCRA is ANSI standard typeface for optical characters. If I write something with a font OCRA, there is a font OCRA, guys. This is the font name, like Arial, Times New Roman, and these kind of fonts are available. If you use a OCRA font, basically these type of fonts can very easily be detected with OCR machine. ओके तो अगर मैं OCRA फॉन्ट के साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट लिखता हूं या स्कैन करवाता हूं तो उसे OCR मशीन बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगी, सारे कैरेक्टर्स हमारे प्रॉपरली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा, राइट। हाथ से लिखा हुआ आप कुछ स्कैन कराओगे, ऑफ कोर्स इश्यूज आएंगे, राइट गाइस। तो हाथ से लिखा हुआ जनरली इश्यूज पैदा कर देता है, बट जनरली अगर हम OCRA फॉन्ट के थ्रू लिखेंगे तो हमें इश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हमारा स्कैन होके आता है, राइट। ओके बढ़ते हैं इससे आगे। ओके लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। So a microphone is an input device that was developed by Emily Berliner in 1877. It is used to convert sound waves into electric waves or input the audio into computers. So, who invented microphone or a mic? Emily Berliner in 1877. Okay, remember this. And what microphone converts? Basically, it converts the sound wave into electric waves, right? It converts sound waves into electric waves, guys. Or you can say input the audio into the computer, right? So our sound waves are present in let's say physical form, and basically it converts that physical form into digital form for our computer, right? Okay, so let's talk about types of microphone. There are multiple types of microphones available. Let's see how they work. So first of all, we have dynamic microphone. So it is the most commonly used microphone with a simple design. It has a magnet which is wrapped by a metal coil and a thin sheet on the front end of the magnet. Similar to, let's say, you can say that similar to a speaker, right? Similar to a speaker. There are a little changes, but okay, let's understand. Basically, what we are trying to say, we have a magnet, okay. This is our magnetic coil, let's say. Okay, basically around this there is a copper coil available, okay, and this copper coil is attached with a thin film, plastic sheet film or something like that. This plastic coil, sorry, this copper coil is attached with a thin sheet, okay. So when we say something, waves move this thin sheet, or I can say oscillate
this thin sheet, right? Front and back. Okay. When this thin film sheet basically moves, it moves that copper coil. जब ये थिन शीट मूव होती है, आगे पीछे मूव होगी, राइट, ऑक्सीलेट करेगी हमारे वेव पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो कॉपर कॉइल इससे जुड़ी हुई है, वो भी आगे पीछे ऑक्सीलेट करेगी। एंड बेसिकली देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी कॉपर कॉइल के अंदर एक मैग्नेट को आगे पीछे मूव किया जाता है, तो इस कॉपर कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट गाइस? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो जब एक मैग्नेट को एक कॉपर कॉइल के अंदर मूव किया जाता है, इसे हम यहां पे मूव करेंगे अंदर की तरफ, आगे पीछे, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कहां? इस कॉइल के अंदर, राइट? सो बेसिकली व्हेन वी स्पीक्स, जब हम कुछ बोलते हैं, तो ये कॉपर कॉइल इस मैग्नेट के चारों ओर हिलता है, जिसकी वजह से फेंट करंट पैदा होता है, जिसे कैप्चर कर लिया जाता है। बाय दैट इट कन्वर्ट्स ऑडियो इनटू डिजिटल फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो भी हम बोलते हैं उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है गाइस। नाउ देयर इज वन मोर टाइप ऑफ माइक्रोफोन विच इज condenser microphone. Okay, if you are using let's say some kind of uh, mobile headphone or something like that, right? कोई भी आप मोबाइल का हेडफोन यूज कर रहे हो या आपके मोबाइल के अंदर एक माइक्रोफोन जरूर लगा हुआ होगा, तो उसके अंदर जो भी माइक्रोफोन्स हैं, जो भी माइक हैं, वो जनरली डायनेमिक माइक्रोफोन होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। जनरली हमारे मोबाइलों में सभी में आपको डायनेमिक माइक्रोफोन देखने को मिलेगा, हमारे हेडफोन्स में भी डायनेमिक माइक्रोफोन देखने को मिलता है, इवन ईयरबड्स या ब्लूटूथ हेडफोन, सभी में डायनेमिक माइक्रोफोन देखने को मिलता है। देन वी हैव कंडेंसर माइक्रोफोन। सो इट हैज अ फ्रंट प्लेट कॉल्ड डायफ्राम and a back plate parallel to the front plate. When sound hits the diaphragm, it vibrates the diaphragm and alters the distance between the two plates. The charges in the distance are transmitted as electrical signals. These are called condenser microphones. Okay. इनमें क्या है? दो प्लेट बगल बगल लगी रहती हैं, दोनों पे वायर लगा हुआ है, स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल की बनी रहती हैं ये प्लेट्स। सो एनोड और कैथोड की तरह काम करती हैं। व्हेन वेव हिट्स द फर्स्ट प्लेट विच वी कॉल्ड डायफ्राम, पहली प्लेट काफी लचीली होती है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम, तो ये बैक एंड फोर्थ मूव करेगी। बेसिकली इट मूव्स बैक एंड फोर्थ बिकॉज अब ये डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच में कम ज्यादा होता है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में चार्ज पैदा होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, राइट? सो देयर आर टू प्लेट्स। द फर्स्ट प्लेट is called a diaphragm. It is very thin and like elastic. When the sound wave hits that diaphragm plate, basically it changes the distance between the two plates, and because of this change, an electric current being emitted between these two plates. Okay, and this current will be called our digital data. Okay, तो ये जो करंट इन दोनों प्लेटों के बीच में बना है, यही हमारा डिजिटल फॉर्म में चेंज हो जाता है गाइस। ओके, सो दैट्स हाउ कंडेंसर माइक्रोफोन वर्क्स। बेसिकली काफी महंगे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं डायनेमिक माइक्रोफोन की। 5-10 रुपए के हैं, सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्वालिटी के लोगे 5-10 रुपए का एक माइक्रोफोन। अच्छी क्वालिटी के लेंगे 50-60 रुपए का एक माइक्रोफोन बैठेगा।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ हेडफोन और कंप्लीट बेसिकली आपका 3.5 mm जैक के साथ में एक हेडफोन की बात नहीं कर रहा हूं। सिंपल द इंस्ट्रूमेंट, छोटा एक माइक्रोफोन जिसे आपको कहीं पे लगाना पड़ेगा किसी डिवाइस पे। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, सो डायनेमिक माइक्रोफोन काफी सस्ते आते हैं मार्केट में अगर आप हार्डवेयर की शॉप से खरीदेंगे तो। कंडेंसर माइक्रोफोन ऑन द अदर हैंड आर एक्सपेंसिव। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज दे वर्क क्वाइट वेल, काफी अच्छे से काम करते हैं। महंगे हमारे जो इस टाइप के आप देख सकते हो प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स होते हैं उनमें इन्हें यूज किया जाता है जनरली। देन वी हैव रिबन माइक्रोफोन्स। रिबन माइक्रोफोन होते हैं, सो इट हैज अ थिन रिबन मेड ऑफ एल्यूमिनियम। इनमें एक थिन रिबन होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है या डुरालिनियम और नैनो फिल्म सस्पेंडिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। The sound wave causes vibration in the ribbon, which generates a voltage proportional to the velocity of the vibration. So, ये जो थिन रिबन है एल्युमिनियम का ही एक दूसरा रूप होता है ड्यूरेलिनियम, राइट। आइसोटोप्स आपने पढ़े होंगे अगर केमिस्ट्री ली होगी तो। सो बेसिकली एल्यूमिनियम हैव अ आइसोटोप कॉल्ड ड्यूरालिनियम। बेसिकली जब इसकी एक नैनो फिल्म को मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया जाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव होती है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वोल्टेज जनरेट होता है जो कि प्रोपोर्शनल होता है हमारी साउंड के, उसके थ्रू कैप्चर कर लिया जाता है साउंड को। दीज आर मोर एक्सपेंसिव देन कंडेंसर। ओके, तो ये और ज्यादा बेटर होते हैं, फेंट साउंड्स भी कैप्चर कर सकते हैं, काफी बढ़िया तरीके से काम करते हैं, राइट। तो डायनेमिक माइक्रोफोन सस्ते हैं, कंडेंसर उनसे महंगे हैं, रिबन उनसे भी महंगे हैं। सबकी टेक्नोलॉजी बता दी गई है आपको, तो एक बार चेकआउट कर लीजिए कि हाँ किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। डायनेमिक नॉर्मल वर्क के लिए, नॉर्मल बातचीत के लिए बढ़िया है, नॉर्मल रिकॉर्डिंग के लिए बढ़िया है। कंडेंसर माइक्रोफोन इफ यू आर अ प्रोफेशनल देन दीज आर गुड्स। रिबन माइक्रोफोन बेसिकली इफ यू आर अ सिंगर देन रिबन इज फॉर यू। ओके, बढ़ रहे हैं इससे आगे। ओके, तो थोड़ा सा अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पे लाइक कैटेगराइज करें, इफ वी कैटेगराइज माइक्रोफोन्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ माइक्रोफोन्स अवेलेबल। ओके, सो omni directional माइक्रोफोन हमारे पास होते हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रोफोन दैट इज एबल टू पिक अप साउंड फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द माइक्रोफोन। omni डायरेक्शनल के अंदर क्या होता है, माइक के चारों तरफ से कहीं से भी साउंड आ रही हो चारों तरफ से कैप्चर किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड omni डायरेक्शनल माइक्रोफोन। सो इन omni डायरेक्शनल माइक्रोफोन फ्रॉम विच साइड इट कैन रिकॉर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। ओके, देन वी हैव यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफोन। So it is a type of microphone that can pick up sound in one direction only. ये सिर्फ एक डायरेक्शन से ही साउंड को कैप्चर कर सकते हैं। जनरली पॉडकास्ट या इस टाइप की चीजों में इन्हें यूज किया जाता है, राइट। सो पॉडकास्ट हो गया या यूट्यूब के लिए वॉइस ओवर बनाने के लिए या डबिंग के लिए इन्हें यूज किया जाता है। तो इस टाइप के जो माइक्रोफोन्स होते हैं, तो जनरली इस टाइप के माइक्रोफोन्स एक ही साइड से साउंड को कैप्चर कर पाते हैं, दूसरी साइड से ये साउंड को कैप्चर नहीं करेंगे। ओके, सो दीज आर कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफोन। एक तरफ से साउंड को कैप्चर करते हैं, बेसिकली साउंड डबिंग के लिए, क्योंकि सामने से कोई बोलेगा उसी को कैप्चर करेंगे, पीछे से या दाएं बाएं से कोई साउंड आएगी, एको आएगा, उसे कैप्चर नहीं करते हैं, राइट। सिंगर्स यूज कर लेते हैं, डबिंग आर्टिस्ट यूज करते हैं, प्रोफेशनल यूट्यूबर्स भी इस टाइप के माइक्रोफोन को यूज करते हैं। पॉडकास्ट के लिए काफी बेटर होते हैं, दोनों पार्टीज के पास अपना अपना माइक होता है, तो एक माइक में दूसरे की आवाज नहीं आती है, राइट। सो बेसिकली इफ वी आर लाइक कंडक्टिंग अ पॉडकास्ट or shooting a podcast, basically we can use unidirectional microphone. So each person have its own mic and it is going to capture only his voice.
बाहर का एको नहीं आएगा, बाहर से कोई साउंड नहीं आएगी, सामने बैठे व्यक्ति की भी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ जो सामने है माइक के उसी की आवाज रिकॉर्ड होती है, राइट? सो unidirectional microphone, guys. Okay, then we have crosstalk microphone. So it is another type of microphone in which you have to keep your mouth close to the microphone without making any noise or sound. That usually happens with other microphones. Okay, so ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का माइक्रोफोन है, ये हमें माउथ के बहुत पास रखना पड़ता है, राइट? आपने इस टाइप के माइक्रोफोन को, क्रॉस टॉक माइक्रोफोन को देखा जरूर है, आई एम श्योर। जनरली कमेंटेटर्स इसको यूज करते हैं व्हेन वी सॉ अ क्रिकेट मैच, बेसिकली दे यूज क्रॉस टॉक माइक्रोफोन, राइट? आपने देखा होगा वो अपने माउथ के बहुत पास उस माइक्रोफोन को रखते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि पूरे मुंह से अटैच है वो माइक्रोफोन, राइट? सो जनरली कमेंटेटर्स यूज दीज काइंड ऑफ माइक्रोफोन्स। व्हाई? Basically, these type of microphones captures only that sound which comes from like very close, right? So अगर हम देखेंगे स्टेडियम में बहुत शोर होता है, भीड़ होती है, वहां पे लोग चिल्ला रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक चेयरिंग चालू रहती है, लोग ड्रम्स एंड सो ऑन इक्विपमेंट्स को बजा रहे होते हैं, तो वो आवाज़ हमें कैप्चर नहीं करनी है, राइट? दैट्स वाई क्रॉस टॉक माइक्रोफोन्स को यूज किया जाता है, जो कि माउथ बहुत ही पास रखने पे ही कैप्चर करते हैं, वरना कैप्चर नहीं करते हैं। ओके ओके, देन क्लिप ऑन माइक्रोफोन्स। Okay, so right now I am using a clip-on microphone. So it is also called lavalier, lapel mic, body mic, neck mic, collar mic, or personal mic basically, right? So there are multiple names for a clip-on microphone, guys. Okay, normally lapel mic ज़्यादा पॉपुलर है, कि लेपल माइक अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको लेपल माइक्स देखने को मिल जाएंगे मल्टीपल टाइप्स के, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लेपल माइक्स अवेलेबल होते हैं, दीज आर कॉल्ड क्लिप ऑन माइक्रोफोन्स। जनरली रिपोर्टिंग करने वालों को आपने देखा होगा, उनके कॉलर पे एक माइक लगा होता है, तो वो क्लिप ऑन माइक्रोफोन होता है, राइट? सो रिपोर्टर्स बेसिकली यूज दीज काइंड ऑफ माइक्रोफोन्स, उनके कॉलर पे एक माइक लगा रहता है जिसके थ्रू रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी आवाज रिकॉर्ड होती है। आई एम यूजिंग वन ऑफ दीज काइंड ऑफ माइक्रोफोन्स, सो इजीली साउंड को कैप्चर किया जा सकता है इसकी मदद से, राइट गाइस? ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वेबकैम। सो एनी कैमरा विच इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ वेबकैम। कोई भी कैमरा लो, उसे कंप्यूटर से अटैच कर दो, अब ये क्या कहलाएगा गाइस? अब ये क्या कहलाएगा? वेबकैम कहलाएगा। याद रखेंगे, कोई भी कैमरा लेंगे उसे हम कंप्यूटर से अटैच कर देंगे तो अब ये वेबकैम की तरह काम कर रहा है। इफ इट इज कैप्चरिंग अ फोटो इनटू योर कंप्यूटर देन इट इज अ वेबकैम, गाइस। याद रखना है इसे, अगर ये कैप्चर कर रहा है फोटो, आपके कंप्यूटर तक भेज रहा है, तो ये हमारा क्या है? वेबकैम कहलाएगा। अब आप चाहें डीएसएलआर जोड़ दो, ठीक है, नो इश्यूज, डीएसएलआर जुड़ा है वो भी वेबकैम ही कहलाएगा, नो इशू, ठीक है? याद रखना है इस चीज को। ओके, देन द इनबिल्ट कैमरा प्रोवाइडेड ऑन अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वेबकैम। तो जो भी कैमरा है जो कि कैप्चर कर रहा है कुछ आपकी इमेज वगैरह, आपके कंप्यूटर तक भेज रहा है, वो क्या है? वेबकैम है। तो चाहे वो बिल्ड इन कैमरा हो, वो भी हमारा क्या कहलाएगा? वेबकैम कहलाएगा, गाइस। ओके, इस चीज को याद रखो। देन it is an input device as it can take pictures and can be used to record videos if required. So हमारा डिजिटल बाहर के लाइट डाटा को, बेसिकली लाइक लाइट डाटा, उसको कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज अ इनपुट डिवाइस, ठीक है? तो कोई भी हमारे पास लाइट सोर्स है उसको कैप्चर करता है, या फॉलन लाइट को कैप्चर करता है और उसे अंदर कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में चेंज करके दिखाता है, that's why it is called input device, guys. The pictures and videos are stored in computer memory and can be displayed on the screen if required. So जो भी हमने कैप्चर करी हैं वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं, बाद में देखी जा सकती हैं। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू आउटपुट डिवाइसेस, गाइस। अब बढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस के पास। सो any peripheral that accepts data from the computer
and prints, projects or reproduce it is known as आउटपुट डिवाइस। तो कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि डाटा कंप्यूटर से ले और फिर उसे प्रिंट करे, प्रोजेक्ट करे या रिप्रोड्यूस कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस कहेंगे। रिप्रोड्यूस इन द सेंस, जैसे कि हमने रिप्रोड्यूस कैसे किया? हमने स्पीकर के थ्रू वापस वेव फॉर्म में बदल दिया उसे, राइट? साउंड वेव्स में वापस फिजिकल साउंड वेव्स में बदल रहे हैं डाटा को, तो वो क्या है? रिप्रोड्यूस कर रहा है उसे, राइट? तो हम किसी चीज का प्रिंट ले सकते हैं, उसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो भी हमारी होंगी, अगर किसी डिवाइस की मदद से हो रही हैं तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। द आउटपुट में बी ऑडियो, वीडियो और अ हार्ड कॉपी ऑन अ प्रिंटेड पेपर, ईटीसी, राइट? सो कोई भी ऑडियो, वीडियो, हार्ड कॉपी कुछ भी हो सकता है ये। आउटपुट डिवाइसेस कन्वर्ट द कंप्यूटर डाटा टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल डाटा को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। हम डाटा नहीं समझ सकते, डाटा है 0 1 की फॉर्म में, राइट? तो हम वो नहीं समझते हैं, उसे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चेंज करके देता है एक आउटपुट डिवाइस, राइट? कुछ अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे स्क्रीन वाले हमें आउटपुट डाटा मिलेगा जिसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। प्रिंटर्स के थ्रू हमें मिल जाएगी हार्ड कॉपी। वॉइसेस को चेंज करने वाले हमारे आउटपुट डिवाइसेस होंगे, साउंड में बदलने वाले या ग्राफिक्स में बदलने वाले। तो थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, जानते हैं कौन कौन से हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर। अब मॉनिटर काफी एक लंबा पार्ट रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे गाइस। मॉनिटर, देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ मॉनिटर्स अवेलेबल, उनके स्टैंडर्ड्स अलग हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जैसे कि HD, फुल HD, 4K, 720p। क्या होते हैं इस टाइप के मॉनिटर्स, राइट? हम बहुत सारी टाइप की स्क्रीन्स देखते हैं, हमारे मोबाइल में भी देखने को मिलती हैं, टीवी में देखने को मिलती हैं, कंप्यूटर मॉनिटर्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट? सो ये जो डिस्प्ले हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी QHD, HD, फुल HD, 2K, 4K। देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी अवेलेबल, राइट? उसमें भी फिर प्लाज्मा, LED, LCD, बहुत सारे टाइप की डिस्प्लेज आ रही हैं, राइट? तो उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जानेंगे किस किस टाइप की डिस्प्ले होती हैं, उनके बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या तय करे गए हैं कि एक डिस्प्ले कम से कम ये स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी तो वो एक कंप्यूटर के साथ में जुड़ने के लिए कैपेटेबल सॉरी कंपैटिबल है या नहीं है, राइट? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो द मॉनिटर इज द डिस्प्ले यूनिट और स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, वी ऑल नो दैट, ओके? So it is the main output device that displays the processed data or information as text, image, audio or video. So हमारा मेन आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर है, याद रखेंगे। मेन आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर है। बेसिकली इट डिस्प्लेज प्रोसेस्ड डाटा लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो, चीजें हम देख सकते हैं। Okay, can anyone tell me there is some alternative of monitor? क्या मॉनिटर का कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है जिसके थ्रू हम चीजों को देख पाए? क्या कोई बता सकता है क्या मॉनिटर के लिए कोई अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है जो मॉनिटर को रिप्लेस कर पाए, जिसके थ्रू हम चीजों को देख पाए फिजिकली? इज देयर एनीवन जो कुछ बता पाए? कम ऑन गाइस, ट्राई इट आउट। चैट बॉक्स खुला है आपके लिए, ट्राई कीजिए। अगर कोई भी चीज दिमाग में आती है कि हाँ इसको हम मॉनिटर की जगह यूज कर सकते हैं, इज देयर एनीथिंग विच वी कैन यूज एज द अल्टरनेट ऑफ अ मॉनिटर? कम ऑन गाइस, सोच के बताइए। ओके, एक अच्छा आंसर देखने को मिला है। ओके, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी। ओके, LED टीवीज, प्रोजेक्टर,
ओके, सो तो थोड़ा सा बात करते हैं गाइस। देखो, हार्ड कॉपी को या हम प्रिंटर को एज अ मॉनिटर यूज नहीं कर सकते। यस, फोटोज देख सकते हैं, वीडियो कैसे प्रिंट करोगे? चलता हुआ वीडियो प्रिंट हो जाएगा? कम ऑन टेल मी। इज देयर अ वे टू प्रिंट अ वीडियो? मतलब लाइक मैंने प्रिंटर से प्रिंट निकाला, अब उसके अंदर पेपर पे चलता हुआ तो नहीं दिखाई देगा, एक स्टिल इमेज देख सकते हैं बस, राइट? सो मॉनिटर के अल्टरनेटिव बहुत ही रेयर है। हम मॉनिटर को किसी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते, बट हाँ, प्रोजेक्टर को कुछ हद तक यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए भी थोड़ा सा डार्कनेस होना जरूरी है, तभी बेटर क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। जितनी बेटर क्वालिटी मॉनिटर पे आपको देखने को मिलती है, उतनी प्रोजेक्टर से नहीं देखने को मिल सकती, राइट? तो हाँ, एक अल्टरनेट के रूप में प्रोजेक्टर को यूज किया जा सकता है, बट स्टिल मॉनिटर वीडियोस, ऑडियो, इमेजेस सारी चीजें प्रोसेस करके दिखाने के लिए कैपेबल होता है। कोई और ऐसे डिवाइसेस फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कि मॉनिटर के अल्टरनेटिव हो। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मेन आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर का मेन आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर है। इस चीज को याद रखो, ये सभी चीजों को लगभग डिस्प्ले करने के कैपेबल होता है, राइट? चाहे आपका 3D मॉडल हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, सभी के लिए कंपेटेबल बनाया गया है मॉनिटर को, राइट? ओके, तो थोड़ा सा समझते हैं गाइस। मॉनिटर के अगर हम कैटेगराइज करें तो हमें देखने को मिलते हैं दो कैटेगरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, राइट? तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर जो कि पहले यूज होते थे हमारे, वो है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, राइट? पहले वो बंबू वाला जो टीवी होता था या मॉनिटर होते थे बड़े से व्हाइट कलर के, वो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर कहलाते थे। नई टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं फ्लैट पैनल डिस्प्लेस। फ्लैट पैनल डिस्प्लेस को भी अगर हम और कैटेगराइज करें, देन वी विल गेट एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर एंड प्लाज्मा मॉनिटर्स। सो मॉनिटर है, उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वन इज कैथोड रे ट्यूब, सेकेंड वन इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले। देन फ्लैट पैनल डिस्प्ले को भी तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन इज एलसीडी मॉनिटर, देन एलईडी मॉनिटर एंड प्लाज्मा मॉनिटर, राइट? सो ये कैटेगराइजेशन हो जाता है। बढ़ते हैं इससे आगे, थोड़ा सा समझते हैं। तो सीआरटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीआरटी में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। सबसे पहले यहां पे होती है रेस्टर स्कैनिंग। अभी बात करेंगे क्या होता है, बस टर्म याद रखो। रेस्टर स्कैनिंग किस टाइप के मॉनिटर में देखने को मिलती है? सीआरटी मॉनिटर में देखने को मिलती है। देन स्वैपिंग इलेक्ट्रॉन बीम अक्रॉस द बैक ऑफ द स्क्रीन। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन बीम है, वो जो हमारी स्क्रीन है उसके पीछे लगातार फायर कर रही है, जिसके थ्रू जो स्क्रीन है वो कलर्स एमिट करती है। इस स्क्रीन के पीछे होता है फास्फोरस कोटेड बैक, राइट? स्क्रीन के पीछे क्या है? एक फास्फोरस की कोटिंग है। फास्फोरस के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है, देन इट एमिट्स लाइट। ओके, तो जब फास्फोरस पे कोई इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो ये लाइट एमिट करेगा, राइट? सो इट ग्लोज व्हेन हिट्स बाय अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस लूजेस ग्लो एंड इमेज फेड्स एंड फ्लिकर्स। फास्फोरस थोड़ी देर में ये एनर्जी को लूज आउट कर देता है, डेसिपेट कर देता है, जिसकी वजह से उसका ग्लो खत्म हो जाता है। दैट्स वाई इसके पीछे लगातार इलेक्ट्रॉन को हमें रिफ्रेश कराते रहना पड़ता है, या कह लीजिए हिट करते रहना पड़ता है। सो इमेज मस्ट बी कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश्ड। ओके, तो थोड़ा सा समझते हैं इसकी टेक्नोलॉजी को। सो बेसिकली वी हैव अ screen, something like this. Okay, this is front, this is back. On the back side यहां पे फास्फोरस की कोटिंग है। Okay, then there is a electron beam available.
जो कि पीछे एक ट्रांसफार्मर टाइप के पूरे सर्किट पैनल से जुड़ी रहती है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फायर होते हैं। ओके, ये जब इलेक्ट्रॉन फायर होंगे और इस स्क्रीन पे कहीं पे टकराएंगे तो ये फास्फोरस ग्लो होगा। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन वैसे सीधे टकराएंगे सामने, तो इन्हें मूव कराने के लिए 4 प्लेट्स लगी होती हैं पॉजिटिव चार्ज की। 4 प्लेट पॉजिटिव चार्ज की लगाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। जिस भी प्लेट पे आप पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दोगे उसकी तरफ को इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा। जैसे अगर हम पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाली प्लेट पे ज्यादा दे दें, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा और ऊपर हिट होगा। नीचे वाली प्लेट पे ज्यादा चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव होगा और नीचे की तरफ हिट करेगा। लेफ्ट वाली प्लेट पे तो लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा, राइट वाली प्लेट पे तो राइट की तरफ मूव हो जाएगा। दैट्स हाउ हम लगातार इस पे इस तरीके से लाइन बाय लाइन इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं। लगातार लाइन बाय लाइन हिट किया जाएगा जिसके थ्रू एक पूरी स्क्रीन बनेगी। ये जो हिटिंग है पूरी स्क्रीन पे ऐसी लगभग 60 टाइम्स पर सेकंड होगा। 60 टाइम्स पूरी स्क्रीन को हिट किया जाएगा 1 सेकंड के अंदर। बहुत तेजी से हिट हो रहा होता है, नैनो सेकंड्स में हिट होता है, तो 60 टाइम हिट किया जाता है जिसके थ्रू डॉट्स एमिट होते हैं। अगर आप कभी अपने मोबाइल से इस स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहो, पुरानी स्क्रीन को, पुराना मॉनिटर है अगर आप पे कभी, तो उसको आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करने की कोशिश करना। यू विल सी देर इज अ लाइन गोइंग ऑन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अगर आप एक मोबाइल से उस स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे, इफ यू ट्राई टू रिकॉर्ड योर ओल्ड सीआरटी मॉनिटर और ओल्ड टीवी with your newer mobile phone, you will see a particular line moving from up to down or down to up, right? So basically that is the refreshing of that screen. वो उस स्क्रीन को रिफ्रेश किया जा रहा है, लगातार उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया जा रहा है, राइट? ओके, अब यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है हमें। पुराने मॉनिटर्स में अगर सिग्नल नहीं आती थी, डिश नहीं आती थी, तो क्या होता था? कम ऑन गाइस, कैन एनीवन टेल मी, जब पुराने मॉनिटर्स में सिग्नल्स नहीं आते थे, डिश नहीं आती थी, तो क्या होता था? कैन एनीवन टेल मी? किसी ने पुराने मॉनिटर्स या पुराने टेलीविजन्स देखे हों, कोई बता पाए? यस, डॉट डॉट आते थे, ब्लैक वाइट टाइप के। यस गाइस, सो ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स हमें देखने को मिलते थे। क्यों होता था उसके बारे में बात करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन गन को कौन कंट्रोल कर रहा है? दो सिग्नल्स। उन सिग्नल के अंदर इंफॉर्मेशन है इस चीज की कि स्क्रीन पे कहां पे हमें हिट करना है, राइट? स्क्रीन पे कहां हिट होगा, जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर इमेज बनेगी। कहां हिट होना है, कहां नहीं होना है, उसके थ्रू एक जनरल इमेज बनती थी, राइट? अब ये सिग्नल आएंगे नहीं, सिग्नल आएंगे नहीं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लगातार रैंडमली कहीं भी हिट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स लगातार रैंडमली कहीं भी हिट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि सिग्नल नहीं है, उसे पता नहीं है कहाँ हिट करना है कहाँ नहीं करना है। सिग्नल में इंफॉर्मेशन थी, अब उसे पता नहीं चल रहा, तो ये रैंडमली जब हिट करते थे तो हमें वो ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स देखने को मिलते थे, राइट? इज इट इंटरेस्टिंग गाइस? आज पता चल रहा है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स क्यों आते थे, राइट? अभी तक हम नहीं जानते थे, लाइक हम छोटे होते हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन अब आप जानते हो कि वो ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स क्यों आते हैं।
एक पुराने सीआरटी मॉनिटर के अंदर इलेक्ट्रॉन गन है, क्योंकि अब उसे नहीं पता है कि हिट कहाँ पे करना है, वो उस इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलरली किस डॉट पे, किस फास्फोरस के डॉट पे हिट करना है, तो वो जहां मर्जी है वहां हिट कर रही है। जहां पे हिट हो रहा है वो एरिया हो जाएगा व्हाइट, जो एरिया हिट होगा वो हो जाएगा व्हाइट, और जो एरिया पे हिट नहीं होगा दैट विल बी ब्लैक गाइस। ओके, तो याद रखेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन हिट करता है वो व्हाइट एमिट कर देता था, और जहां पे मिस हो जाता था वो ब्लैक रहता था। ठीक है, तो दैट्स हाउ सीआरटी मॉनिटर वर्क्स बेसिकली। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं हल्का सा। इसमें रिफ्रेश रेट या स्कैन रेट कह लीजिए, इसमें नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रॉन बीम रिफ्रेशेस द स्क्रीन, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रेश रेट या स्कैन रेट। ओके, सो द नंबर ऑफ टाइम्स अ इलेक्ट्रॉन बीम रिफ्रेशेस द स्क्रीन इज कॉल्ड रिफ्रेश रेट और स्कैन रेट गाइस। ओके, देन generally it is 80 to 100 times per second adequate for clean screen image। ये जनरली 80 से 100 बार होता था पुराने मॉनिटर्स के अंदर या पुराने टीवीज के अंदर, जिसमें एक एडिक्वेट स्क्रीन हमें देखने को मिलती थी, जिसमें हम इजीली कुछ भी होता हुआ देख सकते थे। सिमिलर process is being used for television, and most screens are capable of displaying 80 characters of data horizontally and 25 lines vertically। तो जो पुराने सीआरटी मॉनिटर्स होते थे, मॉनिटर्स की बात कर रहे हैं, टेलीविजन की बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे गाइस, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पुराने सीआरटी मॉनिटर्स होते थे उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता था, ये जो पुराने टाइप के हमारे मॉनिटर थे, इनके अंदर आप एक लाइन में जनरली 80 करेक्टर्स आ सकते थे एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर। और ऐसी कितनी लाइनें हम पढ़ सकते थे, 25 लाइंस ऐसी एक बार स्क्रीन पे मौजूद हो सकती थी। जनरली उस टाइम पे हम स्क्रीन कितनी बड़ी छोटी बनानी है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते थे, आज भी नहीं कर सकते हो आप। लाइक आज की डेट में हम कंप्यूटर पे तो डिसाइड कर लेते हैं, अपने लैपटॉप पे डिसाइड कर लेते हैं, बट स्टिल आप टीवी पे क्या स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो? नो, राइट? लाइक इज इट पॉसिबल कि कंप्यूटर की स्क्रीन को मैं थोड़ा सा लाइक बड़ा या छोटा कर लूं? कंप्यूटर पे फॉन्ट को छोटा बड़ा किया जा सकता है, रेजोल्यूशन कम ज्यादा किया जा सकता है, राइट? वी कैन चेंज अवर कंप्यूटर्स रेजोल्यूशन, राइट? तो उसको चेंज करके मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, तो आइकन्स बड़े दिखने लगेंगे, एक लाइन के अंदर कम करेक्टर्स आएंगे, मैं बड़ा कर दूंगा, कम करेक्टर हो जाएंगे ऑफ कोर्स। बट वी कैन नॉट डू दैट इन अ टेलीविजन, राइट? हम टेलीविजन में ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो आ रहा है वही दिखेगा, राइट? तो ऐसे ही पुराने सीआरटी मॉनिटर्स में ये चेंज करने की कैपेबिलिटी नहीं होती थी, तो उसकी वजह से जनरली एक लाइन के अंदर 80 करेक्टर्स हमें देखने को मिलते थे, और 25 हमारी वर्टिकल लाइंस रहती थी डाटा की। अगर हम कुछ लिख रहे थे तो 25 लाइंस स्क्रीन पे प्रिंट होके आती थी एक बार में, और 80 करेक्टर्स हमारे एक लाइन के अंदर रहते थे गाइस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही है। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट एवरीवन।